बात ये हवाओं को बताए रखना, जहां रोशन होगा दिए जलाए रखना। की है हिफाजत लहू लेकर जिसकी हमने, की है हिफाजत लहू लेकर जिसकी हमने, मन में सदा उस तिरंगे को बसाए रखना। यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जश्न ए आजादी का दिन है और मैं दिया ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर के आशीर्वाद लेंगे और इसके लिए मैं प्रार्थना इंद्रजीत को आमंत्रित करती हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके रे, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद प्रार्थना। इस कोरोना संकट के बीच सबके मन में सवाल था कि इस साल स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाएगा। सही है, हम भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आदरणीय प्रिंसिपल मैम जो हमें सर्वदा सही दिशा दिखाने का कार्य करती है, उनके निर्देश अनुसार हमारे प्रिय उप प्रधानाचार्य विनोद सर और हमारे कुछ सहपाठियों ने आज स्कूल के आंगन में तिरंगा फहराया और अब हम इसके वीडियो देखेंगे। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय थैंक यू सर, थैंक यू रजनी मिस एंड शशि रेखा मिस। अब आदरणीय प्रधानाचार्य जी से मेरा अनुरोध है कि भले ही आप अपना बहुमूल्य संदेश देकर इस दिवस को समृद्ध करें। Good morning, everyone. His Grace Joseph More Gregorius Metropolitan, our mentor,
Father Baby Chamakala Core Episcopa, our Secretary, Vice Principal Reverend Father George, Vice Principal Academics Sri Vinamon, teachers, parents, my dear children. It's the 74th Independence Day of India. 73 years have passed since we became free. And for years, in my past, so many years, as much as I could remember, I have attended Independence Day celebrations in school, college, again in school. And today, it is a different thing altogether, virtual. Let me thank Vinamon sir for hoisting the flag in my absence on my behalf as I am in the containment zone. Thank you, sir, and my Senate members. Even if it's virtual, let me tell you, children, it created goosebumps. The feeling that you are an Indian. Every day you are an Indian, but these days remind you and make you feel it from the heart. I felt as I hold the flag on my shoulder, on my chest, I have pinned a badge, which I hope I will hold it all the time, proudly. Dear children, you have heard what was before 1947, what was India before 1947, or you have read it in your history books. Many of the people who are right now listening to me haven't really gone through those days. So let's think about those brave hearts, the military forces, the national leaders, the ordinary Indian, the unsung heroes who fought courageously for getting us the freedom that we are enjoying today. Dear children, I wonder whether you really understand what is being restricted and what is freedom. Freedom means the decision maker. You become the decision maker. You can decide, you can choose, you can think, you can act freely, you can speak, you can express your feelings. How much is the question? How far is the question? But you're all enjoying freedom. And the freedom was restricted a little while earlier, and it's continuing. The lockdown taught you how to sit at home, not to go to malls, not to have parties, not to eat junk food. Restrictions for the better. Freedom is the capacity to enjoy thinking freely. At the same time, think responsibly. As an Indian, you have to behave responsibly and enjoy your freedom. The Senate members were elected, even in this lockdown time, democratically. You chose your leaders. You decided whom you want to represent you as a Senate. That is the capacity to enjoy freedom and behave responsibly. You have shown it already. And you are showing it again when you are sitting at home, attending online classes, submitting work on time, and listening to the authorities, how to behave, not to go out, maintaining social distancing. We did it today too. Let me say, I really felt proud when I saw the Senate members standing there, maintaining social distance with the mask, with their vice principal, hoisting the flag, creating the mood that we felt sitting at home. That is responsible citizenship. What the country needs now is responsible citizenship. Our Prime Minister, even today, spoke about self-reliance. How do we contribute towards his dream of being self-reliant
What are the duties of students? I'm not talking to the people, I'm talking to my own students and teachers and their parents. How do students make it self-reliant? Atmanirbharata. How do you do that? Self-reliance. You have to think locally, act locally, and have the ethos which is global. You have to promote, encourage local products, local shopkeepers, instead of the big malls where people crowd. We are doing it. See, Corona made us do so many things in the right way. Contribute towards the progress of the city, the place where you are in. Naturally, the rest will happen. If every person in a city behaves responsibly, if every person do not litter the place, if every citizen make use of the local products, and if every citizen try to have organic vegetables, you can do all these things. We shouldn't be waiting for the authorities, the so-called government. It's our own people, isn't it? So you have to encourage all this. You have to do all these so that changes happen. Dear children, your future, your prosperity depends on the prosperity of the nation. And unless you contribute towards it, progress won't come in just like that. It's not somebody else bringing in progress here. It's you, the younger generation. And Gregorians, I want you to behave responsibly and use your education for the country. Developments will happen, industries will progress, economy will go up only if you think that way. The education that you get, you use it for research. The education you get, use it for looking after the poor. Empathy should be there. Then I'm sure things will change. And things should change faster. That is where my concern is. We cannot go at snail pace. We have to go faster. And things happen so fast, isn't it? During the lockdown time, if we were given the choice, I don't think I'll be addressing you online. We wouldn't have done virtual things. Virtual election, virtual Achievers Day, virtual Independence Day, virtual Onam celebration, virtual exams, virtual whatnot. Everything has happened. We were pushed, swiped off our feet one fine morning, and we did it all. That's it. The progress, the change, the renaissance has to happen faster. And I'm sure if you all contribute, it will happen. And Gregorians should be the torch bearers, the trailblazers in making that change towards a better India. Dear teachers, I would like to tell you something. His Grace often says, education should make not people who follow orders, but people who are independent thinkers. What I mean to say is, mindless followers you shouldn't be, dear children, and you should be independent thinkers. And teachers, you can contribute towards it. Your mode of teaching, your mode of imparting knowledge has changed completely, and use it to make Gregorians independent thinkers as our mentor always wanted them to be, not mindless followers. With this note, I conclude my speech, but once again, a big thank you to the teachers, Ms. Bini, Ms. Rajini, and the rest of the team who worked for it. And a special thanks to Mr. Vinamon K. Matthew, who hoisted the flag and stood like a pillar in front of all the challenges that we faced for this virtual program. Happy Independence Day to you all. Thank you. मेरे वतन के लोगों,
जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब चलिए इस दिवस का प्रदर्शन एक सुंदर गीत के साथ शुरू करते हैं और इसके लिए मैं अंकिता जेसन को आमंत्रित करती हूँ। नवे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी सभी तेरे खून से तो सरती संवरती है रांझी, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ये मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के कौन कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद अंकिता, वह एक सुंदर और मोहक गाना था। और बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर, जो एक भाषण है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थी श्रेयस को। नमस्कार, आप सभी को मेरा सुप्रभात। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम एक विशेष अवसर के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ, ये भारत का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता के लिए हमारा मतलब होता है, यानी आज़ादी के लिए हमारा मतलब होता है एक वातावरण जहाँ किसी पर भी जोर या जबरदस्ती ना हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य हक से कह सके। हमें 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी मिली थी और उन्हीं दिन को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस वर्ष 2020 को हम भारतवासी अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस शुभ अवसर पर हमें अपने स्वतंत्र सेनानियों को याद करना चाहिए। उन्होंने बहुत कष्ट
और जुल्म सहकर हमें आज़ादी दिलाया, क्योंकि हमें वो जुल्म ना सहना पड़े। और अगर वो ना होते तो हम अभी भी अपनी मिट्टी पर सांस नहीं ले पाते और अभी भी हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम होते। उनके इस बलिदान को हमेशा हमें दिल में रखना चाहिए और उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस 70 वर्षों के बाद भी ऐसा कुछ चीजें हैं जो हमें महिमा लाती है और ऐसे चीजें भी है जो हमारे सिर झुका देती है। एक तरफ पर हम मंगल और चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं और 70% से ज्यादा लोगों को 4G कनेक्टिविटी दिला रहे हैं, पर दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति अनादर और प्रदूषण जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा, अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त, महान और ज्ञानी लोगों से भरना होगा तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो है माता, पिता और गुरु, यानी शिक्षक। देश से नकारात्मक सोच और नकारात्मक सोचने वालों की मिटाई करनी होगी। और हाँ, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अगर भारत को आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। अगर भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ना होगा तो आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। भारतवासी के लिए चीजें बनाएंगे जो भारतवासी उपयोग करेगा। भारत आगे बढ़ रहा है और हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, दूरदर्शी बनना होगा और सर्वप्रथम अपनी निष्ठा भारत माता से प्रतिज्ञा करना होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रेयस। और अब हम देखेंगे हमारे दोस्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए एक डांस परफॉर्मेंस की वीडियो। ओ रांझना वे, तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं, तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। वह एक शानदार परफॉर्मेंस था। अब हम मिलते हैं अपने कलाकारों से। नमस्कार, मैं दिया ज्योतिलाल। नमस्कार, मैं जिसान जकरिया। नमस्कार, मैं देविका मनोज। अब चलिए इस दिन के अंतिम प्रदर्शन की ओर। हमारी प्रिय अध्यापिका चैतन्या जी
जो एक अच्छी गायिका है, हमें एक गाना सुनाएगी और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेगी। आजा के सब मिलके रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे, हालात बदलने में अब देर न हो मालिक, जो दे चुके फिर अंधेर न हो मालिक। एक तो ही भरोसा, एक तो ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, एक तो ही भरोसा, एक तो ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। एक तो ही भरोसा, एक तो ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। You are on mute. Unmute, miss. आदरणीय हिज ग्रेस, जो अपनी निजी तथा सामाजिक व्यस्तता के कारण समारोह में अनुपस्थित हैं, आदरणीय प्राचार्य श्रीमती जयप्रभा मैम,
उप आचार्य फादर जॉर्ज तथा विनी सर, कार्यक्रम के लिए उपस्थित छात्रगण के माता पिता और मेरे प्रिय साथियों, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ देश के स्वतंत्रता के 74वां साल मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हालांकि हर साल की तरह स्कूल में न होकर हम सबको जूम जैसे ऑनलाइन मंच के जरिए इस समारोह में शामिल होना पड़ा। इस अत्यंत बदलती हुई परिस्थिति में भी आप सब इस कार्यक्रम के लिए शामिल हुए, इससे बड़ी बात तो है ही नहीं। जहां इस दिन को कार्यक्रम समाप्त होने को है, मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापिका श्रीमती जयप्रभा मैम एक ऐसी शख्स है जो अपनी हर काम में पूर्णता उम्मीद करती है और उस पूर्णता को हासिल करने के लिए वो बहुत मेहनत करती है। उनका यह अंदाज हमारे विद्यालय के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम में झलकता है। मैम, आपका सुझाव हर कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मैम। किसी भी विषय को सरलता से संभालना तथा हर एक मुश्किल का हल देना कोई आपसे सीखे फादर जॉर्ज। इस अवसर पर मैं आपसे अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू फादर जॉर्ज। विनू सर, आपसे आभार व्यक्त करना कठिन होगा क्योंकि आपसे सुझाव या सलाह लेकर काम करना हमारी आदत हो गई है। उन सभी अनसुनी अनकही मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति हमेशा खास रही है। आपके सुझाव तथा निर्देश हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। इस महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए आपकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। थैंक्स अ टन डियर पेरेंट्स। मेरे प्रिय बच्चों, आपने इस खास दिन को अपने कलाओं के प्रदर्शन से और खास बनाया है। परीक्षाओं के बीच देशभक्ति की भावना भी कायम रखते हुए आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाया है। मेरे बच्चों, आपको अपनी अध्यापिकाओं का ढेर सारा प्यार। अंत में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित मेरे प्रिय शिक्षकगण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मिस। जय हिंद। We are coming to the end of the program, and I cannot leave without saying a big thank you to all the participants, from prayer to the word of thanks. I wanted to tell you something which I didn't mention in my speech, that is about having the whole program in Hindi. I didn't have the guts to do it, but I could make everybody else do it. I don't know whether it's a good leadership or bad leadership, but it just worked. It just worked. I'm really proud that we could carry it forward so well. Diya Jyotish, Shreyas, Prarthana, the dancers, Devika, Diya, and who else was there? Jisa. All did such a good job. Ankita, your song was beautiful. And I want Miss Rajini, Miss Bini, and Miss Sri Lakshmi, who worked behind it, to be spotlit. Miss Rajini, can you do that, please? Can we do that? Miss Bini? If they speak, they have to speak something to come in the first screen, otherwise it's difficult. Okay, maybe they are busy finalizing the things. Whatever it may be, I'm sure Miss Rajini and the computer department, yeah, that is Bini. Salute to you. And Miss Sri Lakshmi? Miss Sri Lakshmi? I can see Chaitanya there. A big salute to you. Sri Lakshmi, thank you so much. I know all done so well, means a lot of effort has gone in. And the computer department and the teachers should see that the YouTube version is coming out as quickly as possible. I told you the change has to happen fast. That is what is called progress. Thank you all. Happy Independence Day once again.